Now the chapter number 17, what are we doing? It's Customs Act made in the year 1962. I repeat, Customs Act was made in the year 19. You can repeat after me, okay? Customs Act was made in the year 1962. Okay, so before even I start customs, I have to explain you ये किस कैटेगरी का टैक्स है. So custom I call it as, it is a category of indirect tax. It is a category of indirect tax. So you'll ask me then what is indirect tax? So here I need to explain you the difference between direct tax versus indirect tax. Okay, customs is indirect, but what is direct? Because till the time you don't know what is direct, how will you know what is indirect? So direct tax means that the burden of paying tax directly comes on the individual or the assessee. मतलब डायरेक्ट बर्डन आता है. अब डायरेक्ट बर्डन मतलब अगर मैंने इनकम कमाई, I repeat my word, if I earn income, so I have to pay income tax. So I earn income, I pay tax. I earn, I pay direct tax. Are you understanding my words? Yes. Yes. Now, indirect means somebody else. I repeat, indirect मतलब क्या होता है? Somebody else will take the burden. I repeat, somebody else will take the burden of tax. For an example, as a coaching class, we earn fees. Okay, but फीस के ऊपर का जो GST है वो स्टूडेंट पे करता है, क्लास पे नहीं करता. अर्न कौन कर रहा है? क्लास. बट हु पेज द GST? द स्टूडेंट. That is indirect tax. Are you understanding the difference between the word direct and indirect? Yes, sir. Yes, So sir. here comes once again, guys. Study circle earns fees. So study circle will pay direct tax, income tax. But when study circle earns fees, students pays GST, it is indirect tax. Everybody is very, very clear. Yes, sir. Yes, sir. अरे जोर से बोलो यार, सुनाई नहीं देता यार. ये जोर से था. खाना नहीं खाया क्या तुम लोगों ने? कि घर पे दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसा मत बोलो रे. जोर से बोलो, Yes, sir. Yes, sir. दिल से बोलो. जय माता दी. ओके, समझ में आया क्या एवरीबॉडी? डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस. ओके, Yes, sir. so in direct tax the burden is directly on the taxpayer. Okay, in some sophisticated language I will say the burden is directly on the taxpayer. And indirect tax I will say the burden is shifted. The burden is, बोलो मेरा word, Shifted. the burden is shifted. If the burden is shifted, कौन सा टाइप का टैक्स होगा? Indirect tax. Direct tax. करेक्ट. तुमने तुम्हारा बर्डन किसी और को दिया तो इनडायरेक्ट, और तुमने तुम्हारा बर्डन खुद उठाया तो Direct. absolutely clear. And before I even go to that page, before even I go to all this, I have to explain you डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस. क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना, तब तक हमको कभी नहीं समझेगा हम क्या पढ़ रहे हैं. और ये कहाँ पढ़ेंगे? ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लेके जा रहा हूँ. डोंट वरी. लेसन नंबर 11. और फर्क होता है ये सब, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी से पढ़ रहे हैं ना तो फायदा होता है, क्योंकि मुझे पता है कौन सा एग्जैक्टली किधर है. लेसन नंबर 11, आई एम टेकिंग यू टू पेज नंबर 617. एवरीबडी कैन कम डाउन देयर. कम ऑन, पेज सॉफ्ट कॉपी. कम टू सॉफ्ट कॉपी, पेज 617.
I will teach you direct versus indirect. Everybody on the same page. Page 617. Ready? Once you are ready, just let me know if you have moved to that page. Yes, sir. Ready everyone? Page 617, come on fast. Yes. Okay, let's come here. पहला direct tax का first point. These are mainly on income. So income tax is which tax? Come on. I have explained you today. Income tax is which tax? Direct tax. Either wealth tax or either professional tax. You know what? Guys, you and me, I don't know about you right now, but yes, you are entering into a professional world. अगर आप ये CA, CS, CMA जैसी डिग्री नहीं करोगे तो आपके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं आएगा. आर यू गेटिंग इट? I want to here put a very important distinction between academic degree versus professional degree. You know, any degree which starts with B, any degree which starts with B, it can be BCom, BMS, BBA, BSc IT. Are you understanding? B word है ना, BAF. ये होता है ग्रेजुएशन डिग्री, ये भी एकेडमिक डिग्री होती है. फिर एक डिग्री इंडिया में M से शुरू होती है, MCom, MBA, याद है, MM, मास्टर्स. बट दैट इज ऑल एकेडमिक डिग्री. That is all academic degree. Even PhD, doctorate is an academic degree. It is not a professional degree. But when you do any degree by the name of C, that is CA, CS, CMA, CFA, CFP, CIMA, etc., etc., it is a professional degree. So since I have done so many professional degrees, not one, I have done so many. So I have to pay profession tax. क्या पे करना पड़ता है मुझे? करेक्ट. जिस दिन आप भी डिग्री कर लोगे ना तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, प्रोफेशन टैक्स. डॉक्टर्स को भी पे करना पड़ता है, लॉयर्स को भी पे करना पड़ता है और हमें भी पे करना पड़ता है. सो वी हैव टू पे प्रोफेशन टैक्स, बट इट इज अ डायरेक्ट बर्डन. पढ़ाई किसने की? मैंने. प्रोफेशन प्रैक्टिस कौन कर रहा है? मैं. तो टैक्स कौन भरेगा? मैं. इनकम अर्न कौन किया? मैंने. तो टैक्स कौन भरेगा? मैं. वेल्थ टैक्स, आई अर्नड वेल्थ, आई विल पे टैक्स. दीज आर ऑल डायरेक्ट टैक्स. कम्स टू इनडायरेक्ट टैक्स. These are consumption based tax on only goods and services. That's the reason the name is GST. I am teaching you. Teaching is a noble service to the world, to the mankind. Who is gonna take the teaching benefit? आप teaching का service कौन ले रहा है? Who is the service recipient? Who is the service recipient? Come on. हाँ जोर से. Who is the service recipient? Students. And who's the service provider? Who's the service provider? The teacher. हाँ या ना? Yes. So who is consuming the service? Who is consuming the service? You will pay the GST. समझ में आ रहा है क्या बात हो रहा है? Yes. हाँ, वेरी गुड. सो हम सलोन में गए बाल कटवाने. कहाँ गए बोलो? सलोन है ना, बाल कटवाने गए. तो बाल कटवाने का सर्विस लिया हमने. सो देयर वी बिकम कस्टमर, वी बिकम सर्विस रेसिपिएंट. सो हु विल पे द GST? द सलोन और द कस्टमर? Absolutely the customer. I hope everybody is very, very clear. Yes. Okay, great. यहाँ पे here we will pay tax directly to the government. Wow, simple है ना. मेरे पे टैक्स है, मैं ही डायरेक्ट गवर्नमेंट को दूंगा. यहाँ पे तुम लोग पहले टैक्स इंटरमीडियरी को दोगे. मतलब स्टूडेंट्स विल पे GST टू स्टडी सर्कल एंड स्टडी सर्कल विल पे GST टू. क्या बात है. बट इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता है. यू अर्न इनकम एंड यू ओनली पे टैक्स डायरेक्टली टू द. करेक्ट.
But in GST, what will happen? Come on, in GST or customs, what will happen? Come on, fast. You have to pay to intermediate. Absolutely, Jyoti, correct. You have to first pay to the intermediary. आपको किसी को बीच वाले को पे करना पड़ेगा. वो जो बीच वाला होएगा ना, वो सरकार को पे करेगा. Is that very very clear, guys? Yes. Yes, sir. Okay, let's come to the third point. You have to pay the direct tax only and only when you earn income. जब तक तुम इनकम तुम्हारे पास आएगा नहीं तो तुम टैक्स कैसा भरेगा? ऑब्वियस बात है. सपोज इफ आई एम अ सैलरीड क्लास पर्सन, तो जब तक सैलरी मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होएगा, हाउ विल आई पे द टैक्स ऑन सैलरी? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या सीधा सीधा बात है ना. यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है मालूम है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल गाइस. इवन बिफोर यू हैव रिसीव्ड द होल सर्विस यू हैव पेड द टैक्स. तुमने स्टडी सर्कल को फीस दिया, स्टडी सर्कल ने उस फीस में जीएसटी गवर्नमेंट को भर दिया. इमेजिन, अभी तक तो आज पहला लेक्चर है, उसके पहले तुम्हारा जीएसटी भर के हो चुका है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. Yes. तुम्हारा पोर्शन खत्म होने का वेट भी नहीं करता है सरकार. सरकार क्या बोलता है? यू नो, यहाँ पे हम लोग कभी कभी कैसा प्रॉब्लम आता है. लेट मी एक्सप्लेन यू. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू. एक सिंपल एग्जांपल. डू यू वांट वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आई गिव यू? ओके, डू क्या? Yes. ओके, ध्यान से सुनो, एक मस्त एग्जांपल देता हूँ. सपोज मेरा कोई कोर्स का फी है 30,000. कितना फीस है? 30,000. कोई भी क्लासेस का एक कोर्स का फी है 30,000. कोचिंग क्लासेस को 18% जीएसटी है. कितना जीएसटी है? 18. तो टेक्निकली एक स्टूडेंट के फीस में से इतना रुपया हमारा क्या चला जाता है? GST. ये हमको भरना ही पड़ेगा ना. आप समझ रहे, नहीं तो हमारा क्लास का परमिशन नहीं मिलेगा. आजकल ऑनलाइन पेमेंट है, भरना ही पड़ेगा. आप भी समझ सकते हैं ना. देयर कैन नथिंग बी हिडन. कैश है ही नहीं. आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Yes. अच्छा, अब क्या होता है? स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता है क्लासेस को कि प्लीज कैन यू गिव अस इंस्टॉलमेंट्स. स्टूडेंट ने क्या रिक्वेस्ट किया क्लासेस को? हमें क्या दो? क्लासेस ने बोला ठीक है. तो क्लासेस ने बोला स्टूडेंट को कि तू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का दे? 5,000. वेरी गुड. A lecture will begin from say 20th December 2021. स्टूडेंट ने बोला ठीक है, उसने एडवांस दे दिया 5,000 रुपीज. अब मान लो इस डेट के बीच में 19th दिसंबर को स्टूडेंट आके बोलता है आई वॉन्ट टू कैंसल माई एडमिशन, आई वॉन्ट टू Cancel. एंड यू रिफंड मी 5,000. एज अ क्लास हम कहाँ फंसते हैं? जब हमने वो एडवांस उठाया है, हमें एडवांस पे जीएसटी नहीं भरना है, हमको पूरे फीस पे जीएसटी भरना है. मतलब स्टूडेंट से आया तो 5,000 है, बट हमने डिपार्टमेंट को कितना चुका दिया है? 5,000. अब स्टूडेंट बोलता है मेरा फीस रिफंड करो, मुझे बैच अटेंड नहीं करना है. अब हम क्या करें? आर यू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम गाइस? Yes. तो हम लोग स्टूडेंट को बोलते हैं अरे भाई तेरा पैसा तो जीएसटी भर दिया. तो स्टूडेंट आर्ग्यू करता है अरे सर ऐसा कैसा, अभी तक तो लेक्चर चालू नहीं हुआ, तुमने जीएसटी भर दिया. अरे मैं क्या करूं? लॉ में लिखा है भाई, लॉ में लिखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेएबल इवन बिफोर द सर्विस रीचेज यू. मैं क्या करूं? कानून ऐसा बना है तो. अरे आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. अभी ऐसा ही क्लाइंट तुम्हारे साथ आर्ग्यू करता है. ये तो आज स्टूडेंट है गाइस, तुम स्टूडेंट है, मैं टीचर है. टुडे वी आर इनटू दिस रिलेशनशिप, बट वन डे यू विल सर्विस योर क्लाइंट. एक दिन क्लाइंट आपको कुछ बोलेगा, ओके मुझे ये करके दो. आपने क्लाइंट का एडवांस लिया, आपने काम चालू कर दिया. अचानक क्लाइंट आके बोलता है आई वांट टू चेंज माय कंपनी सेक्रेटरी, प्लीज रिफंड माय मनी. तो तुम भी उसको यही बोलोगे. क्या बोलोगे? जो मैं तुमको बोलने वाला हूं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. उल्टे का तो मेरे को स्टूडेंट से 400 रुपये लेने का निकलता है. तू एडमिशन कैंसिल भी करेगा तो बॉस बेटा पहले 400 दे, लेने की बात तो भूल जा. मैं क्या करूं? क्योंकि यहाँ पे लॉ में ऐसा लिखा है. बट यू नो व्हाट प्रॉब्लम इज, नोबडी बिलीव्स कि ऐसा लॉ भी हो सकता है. आर यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? मतलब आपको नॉलेज ऑफ लॉ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं?
कि इनकम टैक्स में पब्लिक को क्या इनकम टैक्स का आदत है इंडिया की पब्लिक को कि भाई इनकम आएगा तो टैक्स भरेगा। इधर तो लफड़ा है, सर्विस मिला भी नहीं है उसके पहले जीएसटी लग चुका है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? शाबाश गाइस, एम आई गोइंग एट द प्रॉपर पेस? प्रॉपर पेस है ना ये स्पीड ठीक है ना? अरे बोलो रे, स्लो फास्ट कुछ करना है तो एकदम धमाल धमाल ना। ओके आगे सुनो। एज आई टोल्ड यू, सबसे बड़ा इनकम टैक्स होता है वही डायरेक्ट टैक्स होता है। पर यू नो व्हाट, इनकम टैक्स किसके ऊपर होता है पता है? पर्सनल इनकम टैक्स इज ऑन ऑलवेज इंडिविजुअल। सो व्हेन इंडिविजुअल पेज इनकम टैक्स, इट इज इनकम टैक्स। बट व्हेन स्टडी सर्कल, इट्स अ कॉर्पोरेट एंटिटी, पेज टैक्स। स्टडी सर्कल की इनकम पे स्टडी सर्कल टैक्स भरता है तो वी कॉल इट कॉर्पोरेशन टैक्स। मतलब इनकम टैक्स इज इनकम टैक्स, पर इनकम टैक्स के दो नाम है। अगर इंसान भरेगा तो इनकम टैक्स, कंपनी भरेगी तो कॉर्पोरेशन टैक्स। अरे समझ में आ रहा है क्या? पहली बार समझ में आ रहा, नहीं तो आज तक क्या होता है मालूम है, लोग यही बोलते हैं इनकम टैक्स को, मतलब लोग यही बोलते पता है। एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, लोग ऐसे बोलेंगे कि कपिल शर्मा बहुत ज्यादा इनकम टैक्स भरता है, अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा इनकम टैक्स भरता है, और पब्लिक यही बोलेगी कि मुकेश अंबानी भी बहुत ज्यादा इनकम टैक्स भरता है। पर पब्लिक ये भूल जाती है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जब भरती है तो वो इनकम टैक्स ही भरती है, बट द नेम इज इनकम टैक्स। नो, द नेम इज कॉर्पोरेशन टैक्स, बिकॉज वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बट मेनी पीपल स्टिल बिलीव इट इज इनकम टैक्स। इंडिया में प्रॉब्लम है, इनकम टैक्स इतना पॉपुलर हो चुका है टैक्स कि सबको लगता है ये कुछ भी नहीं समझा तो एक नाम तो बोल ही देने का, इनकम टैक्स। मतलब यू नो व्हाट, ये ऐसे होता है, कोई छोटे बच्चे को आप बुलाते हो ना, छोटा बच्चा या छोटी बच्ची। आजकल के बच्चे लोग के नाम भी माँ बाप एकदम अतरंगी रखते रहे, अपने जमाने में फिर भी अच्छे रखते थे, नहीं लगता है आप लोग को? मतलब माँ बाप वो यूनिकनेस के चक्कर में ना, मतलब अजीब अजीब नाम रखते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? मतलब आई होप you understood my question, that in today's generation parents want some uniqueness in the name of their kids, right? And that's the reason they are, matlab, you know, see my, you know, Mansi, you know, Chetna, such cool names, no problem yaar. Are you understanding? मैं कोई भी बैच पढ़ाएगा ना, कोई भी बैच, हर बैच में मेरे पास 3-4 मानसी आती है, 4-5 स्नेहल आती है, 2-5 चेतना आती है, कॉमन नेम। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मतलब अंजलि, अंजलि तो मतलब समझने का कि अंजलि मतलब हर तीसरी लड़की का नाम अंजलि होएगा, इट्स सच अ कॉमन नेम। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हर चौथी लड़की का नाम ज्योति होएगा, कितना अच्छा नाम है तुम लोग का, है ना? अंजलि, ज्योति, स्नेहल, बोलने को जमता है, कोई प्रॉब्लम। अपने पास ट्राइफेना भी एक खतरनाक, कहाँ भाग गई पता नहीं, आई डोंट नो वेदर शी इज देयर और नॉट। ओके, ओ शी इज देयर, है ना? तो अपना, और पता है मतलब अभी मतलब कोई भी लड़का अगर फ्लर्ट करने वाला बंदा हो तो उसका नाम राज ही होगा। वो फ्लर्ट करने के पहले अपना नाम राज ही बोलेगा, राज और राहुल, यू नो। सो वी हैव राज इन दिस बैच, इमेजिन। मतलब दीज आर सच कॉमन नेम्स। बट हैव यू सीन द नेम्स ऑफ टुडेज जनरेशन किड्स? आई होप यू अंडरस्टूड माई क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? तो आजकल के बच्चे लोग का नाम समझ में नहीं आता, क्या अजीब अजीब नाम रखते रहे माँ बाप, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं जमता है। मेरे को तो डर लगता है कि आज से 20 साल के बाद जब वो बड़ा होकर मेरे पास पढ़ने को आएगा, मैं उसको नाम कैसे पुकारेगा? मेरे को तो बोलना पड़ेगा मुन्ना मुन्ना और मुन्नी मुन्नी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मानसी हंस रही है जोर से, बोले सर क्या मुन्ना मुन्नी खेल रहे हो, क्या करेगा बच्चा? मतलब कैसा बोलेगा ये लोग का नाम? मतलब आर यू गेटिंग? मतलब अभी तक एडवांटेज क्या है पता है? अभी तक मानसी, चेतना, यू नो, मरी नहीं है, ये सब जिंदा है, अच्छा लग रहा है। आर यू गेटिंग? और तुमसे पहले, मतलब गाइस, दिस इज माय ऑलमोस्ट 19th ईयर ऑफ टीचिंग। जब मैं 19 साल पहले पढ़ाता था, जब मैं नया नया था इस टीचिंग इंडस्ट्री में, एंड आई वाज, दिस इज बाय द वे, दिस इज माय 19th ईयर ऑफ टीचिंग। तो जब मैं नया नया था ना इंडस्ट्री में, तब तो पब्लिक की नाम जो होता था मालती, मालती नाम तो जो कॉमन था, मतलब हर दूसरी लड़की का नाम मालती। आर यू गेटिंग? मतलब क्या नाम, मतलब ऐसे।
मालती, मीनाक्षी, अगर एम लेटर होता, एन होता तो नीलम तो पक्का, नीलम मतलब हर बैच में नीलम होती थी। आर यू गेटिंग इट? हर बैच में नीलम, हर बैच में नैना। आर यू गेटिंग इट? लड़का होता, ए से नाम होता अभिषेक, हर लेक्चर में हर बैच में अभिषेक मिलता था। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मुस्लिम है सोहेल, मतलब कॉमन है। पता है कितने सोहेल है मेरे फोन में सेव्ड? मुझे मैंने कैसे लिया? सोहेल 1, सोहेल 2, सोहेल 3, सोहेल 4। आर यू गेटिंग इट? अभी गिजेल है, जैसे शी इज अ कैथलिक, ओके, तो गिजेल डिसोजा, तो गिजेल, गिजेल डिसोजा, गिजेल फर्नांडिस, गिजेल गॉड, गिजेल डॉड, मतलब ऐसा भी DODD वाला भी सरनेम है। मतलब क्या बोलूं मैं, गिजेल इज सच अ कॉमन नेम इन कैथलिक सर, कैथलिक सर, कम ऑन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब इमेजिन सेम वे, जब अपने को किसी बच्चे का नाम नहीं मालूम होता, अपन क्या बोलते हैं उसको? अरे बेटा इधर आ, ऐसे बोलते हैं ना, मुन्ना, मुन्नी, बच्चा, बच्ची, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई वो तुम्हारा प्यार वाला वो नहीं बोल रहा, बाबू बाबू टाइप्स, बाबू सोना टाइप्स, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस व्हेन यू डोंट नो समबडीज नेम। सेम वे इन इंडिया इनकम टैक्स इज बिकम सो पॉपुलर कि पब्लिक को कोई टैक्स के बारे में नहीं समझ में आता ना, कोई टैक्स का नाम समझ में नहीं आता, पब्लिक उसके साथ इनकम टैक्स लगा देती है। सो गाइज व्हाट आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर इज व्हेन Jinesh sir earns income, what he pays is income tax. But when study circle earns income, what study circle pays is corporation tax. Is that very well understood now? Yes, sir. शाबाश। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में दो ही टैक्स होता है, कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में दो ही टैक्स होता है, बोलो कस्टम्स एंड जीएसटी, चैप्टर नंबर 11 से 16, और कस्टम चैप्टर नंबर 17। अपने को दोनों पढ़ने का है। अरे समझ में आ रहा है क्या बॉस? मजे का बात क्या पता है? अपने को इनकम टैक्स भी पढ़ने का है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी पढ़ने का है, जीएसटी भी पढ़ने का है, कस्टम भी पढ़ने का है, साला पूरा धरती का टैक्स इसी साल पढ़ने का है, 890 पेज पूरा पढ़ने का। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. है ना? तो ये आज बेस है, बट एक दिन तुम इन सब में चैंपियन बनने वाले हो, आई एम श्योर। सो गाइस ईयर इंडिविजुअल भी टैक्स भरेगा, वी ऑल नो, है ना? HUF क्या होता है? सबने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मालूम है ना? कर्ता को पार्सनल वाला चैप्टर ओसी में पढ़ा है कि नहीं HUF? Yes, sir. अरे झूठ मत बोलो, पढ़ा है यार। मित्तकशारा स्कूल ऑफ लॉ, दया भागा स्कूल, दया भागा मित्तकशारा, याद नहीं है क्या तुम लोग का? और 12th में ओसी का चैप्टर है पूरा ये, जॉइंट हिंदू फैमिली। कितने लोगों ने पढ़ा है जॉइंट हिंदू फैमिली? 12th में पढ़े रहे को, ओसी में पढ़े रहे, ओसी में। बस वही HUF की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप फॉर्म वो भी पढ़ा है, इन पार्टनरशिप भी पढ़ा है ना, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर, सोया हुआ पार्टनर, पढ़ा है कि नहीं? जागा हुआ पार्टनर। अरे भूलो मत, 12th स्टैंडर्ड में सब पढ़ा है तुम लोग ने। और जॉइंट स्टॉक कंपनी भी पढ़ा है। सबके सब टैक्स पेयर होते हैं, पर यहाँ पे सबके सब कंज्यूमर कहलाते हैं। मतलब मजे की बात क्या पता है? कंज्यूमर इज द टैक्स पेयर। सो इट आई रिपीट, इफ स्टडी सर्कल बाइज लैपटॉप, स्टडी सर्कल विल पे GST. If Jinesh sir buys laptop, Jinesh sir will pay GST. Are you understanding what I mean? Consumer will pay the GST. Last, direct tax is progressive in nature. Progressive. More you earn, more you pay tax. Higher your income, higher your tax. Progressive. Progressive मतलब बढ़ता है। कम कमाई कम टैक्स, ज्यादा कमाई ज्यादा टैक्स, प्रोग्रेसिव। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है, रिग्रेसिव। ज्यादा से ज्यादा लोग जब जीएसटी भरना चालू करेंगे ना, तो सरकार जीएसटी का रेट धीरे धीरे कम करेगी। और दूसरी बात, अगर तुमको जीएसटी 18% लगता है तो मुझको भी 18% लगता है, गरीब को भी 18 लगता है, अमीर को भी 18 लगता है, सबको 18 ही लगता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एक तो रेट सबके लिए सेम रहता है, पर ज्यादा से ज्यादा लोग अगर व्हाइट में सब खरीदेंगे, व्हाइट मतलब नॉट ब्लैक, व्हाइट में सब खरीदेंगे, तो जीएसटी का रेट धीरे धीरे कम हो जाएगा। इट बिकम्स रिग्रेसिव इन नेचर। लास्ट पॉइंट, इंडिया में डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल कौन करता है? CBDT, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। पूरा नाम है, आपको याद रखना है, ओके? याद रखना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यू हैव टू रिमेंबर इट। और इसको बोलते हैं CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये इसका नाम है CBIC, पार्ट बी। और पार्ट ए का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और पार्ट बी का जो गवर्निंग अथॉरिटी है उसका नाम है CBIC,